Hello student, greetings from the Charu set, and this is the video lecture on the subject of data communication and networking. This is the subject which will be offered in third sem to the CE/CSC student. Now the subject which are the things we are going to cover in this video lecture are as following. We try to understand what is the term data communication means. Then after we look at different types of network. Then after we will look at the internet history and then different type of network standard and the administration process. Now why this subject is important is before to go to that part you should understand what is the organizational structure, shareholder, then after board of director, then after CEO, chief executive officer, then after they have the different officers like chief lead officer, chief finance officer, chief operational officer, chief technical officer, and chief managing officer. Here you can see head of the IT will report to the chief of technical officer. Now head of the IT have the uh, control over all the IT sectors like system administration, network engineer, cloud architecture, and help desk manager. Now we are interested more in the system administrator part, and we will explain what was the system administration role and responsibility. Before come to the system administrator, the short term which are been very famous in industry is sysadmin. Okay, so sysadmin is a term which is used to explain the system administrator. Now system administrator will do installation, configuration of the software, hardware, the network part. All things are done under the surveillance of the system administrator. Now he also have the responsibility of monitoring the system performance as well as the throughput issues, and they will ensure the security and efficiency of the IT infrastructure whole. Now in the small organization one person can do all this stuff, but in the bigger organization team of person have the role and responsibility divided, and they work as a team as a system administrator. And if the organization are very giant, then system administration role responsibility divided in two part. One is the network admin and another is a database admin. Now for this post and all, you require the thorough knowledge about the network, how the network are being configured, how the installation of different network part as well as the software and hardware can be able to come together. Many time compatibility issue and all things are there, but the system admin have the knowledge about all these things. And what was the important part is the troubleshooting. Problems are there in the network, but how to troubleshoot the problem? Troubleshoot means the find the point where the issue are been generated. It might be a software end or might be a physical connection end. So this thing need to be monitored by the system administrator. And for this role and responsibility, this subject is very important. To make you understand the importance of this subject, I will come for that I explain you the organizational structure. And if you have the work experience under some system admin team or as a junior system administrator, you are able to handle all these things. Okay. Now the data communication terminology. This term is very important, and why it is been used, and what is the importance of data communication. What will happen is whenever you want to talk with some person, you come to the some cafe and talk to face, and you discuss the important thing, but it is not been case always. Now as I saying, data communication term means to communicate or transmit any information through one party to the another. And if we go on to the communication means the sharing the information, it can be a face to face or it can be a remote means the person are away from each other and they still want to communicate. Then telecommunication is the word which introduced late, and the tel means the Greek word means far. Okay, now the telecommunication as the exchange of the information between the two devices via some form of transmission media. When I say devices means there can be a equipment or there can be a some uh,
mediator, or whatever you want to say, this all come under the data communication part. And for that you require some transmission media. Transmission media might be, you can say it is via road, it is via rail, anything. But data communication is directly come to the part of information word. जब भी हम मैसेज पास करते, that come under the data communication. It is not like a transport. Okay. And as I say, transmission media can be a wired one or a wireless one. वायर कम्युनिकेशन में आ जाएगा जो भी हम केबल के थ्रू करते हैं वो, और वायरलेस में आ जाएगा रेडियो ट्रांसमिशन, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ऑल आर कम अंडर द वायरलेस. एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ दिस? डेटा कम्युनिकेशन हो तो रहा है मगर उसको हमें चेक करना है कि इट इज ओके और नॉट. देन यू हैव द 4 important characteristic. On this characteristic you can scale your communication accuracy, कि आपका communication सच में हो भी रहा है या नहीं और कितना अच्छी तरह से हो रहा है. For delivery means you are delivering your message to the responsible person. आपको जहाँ पे भेजना था आप वहीं पे भेज रहे हो या नहीं. It is come under the delivery scale, कि आप डिलीवरी अच्छी तरह से आपका कम्युनिकेशन सिस्टम कर पा रहा है या नहीं. ओके. एंड द एक्यूरेसी पार्ट, आप जो मैसेज भेज रहे हो वही मैसेज वहां पे पहुंच भी रहा है या नहीं. इफ सम मैसेज इज बिन चेंज और some part are missing, that system is able to recreate the original message or not. This all thing come under the accuracy scale. Okay. टाइमलीनेस मतलब क्या? जब भी हम वीडियो या ऑडियो ट्रांसमिट करते हैं तो उस टाइम पे आपको सही वक्त पे इंफॉर्मेशन मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर हम कुछ बोल रहे हैं और काफी देर के बाद दूसरा वर्ड आ रहा है और पहला वर्ड पहले आ गया तो इट मेक अ मैश और इट नेट क्रिएट अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन. तो इस केसेस में आप क्या कहोगे? टाइमलीनेस नहीं हो रहा है. जिटर के केस में भी वही होता है. जिटर मतलब क्या? कोई चीज पैकेट जा रहा है, अगर सब कुछ एक लाइन में जा रहा है, सही फ्लो में जा रहा है, तो इट इज अ प्रॉपर कम्युनिकेशन. मतलब जिटर कब होगा? जब पहले वाला पैकेज लेट पहुंचेगा और दूसरा पैकेज पहले पहुंच जाता है. तो जिटर नहीं होना चाहिए. जिटर का सॉल्यूशन क्या है? कि आप एक साथ ज्यादा पैकेट को स्टोर करो और एक साथ ट्रांसमिट करो. Okay, this all are the term we will look at in detail. For now you just come to know that these are the important parameter on which you can find your communication system effective or not. Okay. Now the communication कैसे होगा? There is one person who tried to send some information. These are the known as a sender part, and the other end you have the receiver जिसको information चाहिए. ठीक है. और इन दोनों के बीच में कोई ट्रांसमिशन मीडिया होगा. तो कम्युनिकेशन सिस्टम के कंपोनेंट क्या हो गए? फर्स्ट इज द सेंडर. सेंडर नहीं होगा तो कम्युनिकेशन सिस्टम जनरेट ही नहीं होने वाली. दूसरा है रिसीवर. कोई एक से ज्यादा रिसीवर भी हो सकता है. इन दिस डायग्राम यू कैन सी ओनली वन रिसीवर, बट इफ योर सिस्टम हैव द ब्रॉडकास्ट नेचर देन देयर माइट बी अ मल्टीपल रिसीवर. ब्रॉडकास्ट मतलब कि आप रेडियो करते हो तो मतलब कि एक ब्रॉडकास्ट चैनल है, वहां से सब लोग सुन सकते हैं. तो दिस ऑल आर द रिसीवर. हम सब रेडियो सुन सकते हैं, मतलब कि वी आर रिसीवर. और जहां से रेडियो स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हो रहा है दैट आर द सेंडर. ओके. और फोर्थ चीज क्या होगी? यहाँ पे 5 मेन कंपोनेंट लिखा है. फोर्थ पार्ट क्या होने वाला है? जो हमें भेजना है, मतलब कि हमारा मैसेज ही तो इम्पोर्टेंट है. मैसेज सेंडर से लेकर रिसीवर तक जाएगा. ठीक है. और फिफ्थ पार्ट क्या होने वाला होगा जो इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन सिस्टम में? जब भी सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन होता है, इट नॉट बिन अ केस के डायरेक्ट कनेक्शन है, एक ही केबल के थ्रू वहां तक पहुंच रहा है. नो, देयर माइट बी अ ट्रांसमिशन. वायर से वायर्ड में हो रहा होगा, फिर वायरलेस से फिर से वायर्ड में कन्वर्ट हो रहा होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ केबल में से ट्रांसमिशन हो रहा होगा, डिफरेंट कंपोनेंट कनेक्टर यूज हो रहा. मतलब कि यहाँ पे बहुत सारी चीज अप्स एंड डाउन होने वाले हैं. एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में से दूसरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में हमें स्विच होना पड़ता है. तो काफी चीजें जब होती है तब हमें चाहिए कुछ स्टैंडर्ड, मतलब कि ऐसे कोई रूल सेट कि जो सबको समझ में आए. जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ इंग्लिश में बोल रही हूँ, सामने वाला कुछ चाइनीज बोल रहा है, तो इन दोनों के बीच में मुझे क्या चाहिए? कुछ ट्रांसलेटर चाहिए जो दोनों को समझ सके. तो ऐसे रूल को मैं बोलूंगी प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल है जो दोनों पार्टी को एग्री करने पड़ता है कि हाँ मैं जब भी कुछ भेजूंगी इसी फॉर्म में भेजूंगी, और सामने वाला बोलेगा अच्छा तो मैं इसी फॉर्म में उसको रीड करूंगी. अगर दोनों पार्टी एग्री हो जाती है, इट इज अ कम अंडर द प्रोटोकॉल रूफ.
अगर प्रोटोकॉल नहीं है तो यू कैन नॉट क्रिएट योर कम्युनिकेशन सिस्टम. Okay, these are the communication system component. Now come to the मैसेज पार्ट. मैसेज मतलब क्या, मैंने अभी जो डायग्राम में दिखाया था, इट इज अ मैसेज. ये मैसेज है. तो मैसेज किस किस टाइप के हो सकते हैं. मैसेज कैन बी अ टेक्स्ट, इट कैन बी अ नंबर, इट कैन बी अ इमेज. राइट नाउ आई एम गिविंग यू द ब्रीफ. सो मैं काफी चीजें ऊपर से, आपको लगेगा कि काफी ऊपर से जा रहा है, बट इन द लेक्चर पार्ट आई विल एक्सप्लेन यू द डिटेल, कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे कन्वर्जन करना पड़ता है. ऑल थिंग विल बी एक्सप्लेन इन लेक्चर एंड ट्राइंग टू कवर द बेसिक्स फंडा. नाउ टेक्स्ट की जब बात होती है तो टेक्स्ट हमेशा 0-1 में, मतलब कि बाइनरी सिस्टम में ही ट्रांसमिट होता है. उसके लिए हमें कुछ कोडिंग मैकेनिज्म चाहिए जो हमें हर एक अल्फाबेट को वो कन्वर्ट कर सके. जैसे कि मेरा ए है तो उसको मैं आंसी में 65 बोलती हूँ. आपने सी में पढ़ा होगा, राइट. कैपिटल ए को 65 बोलते हैं, स्मॉल ए को 98. इस तरह से हर एक चीज का एक नंबर है और उस नंबर को कन्वर्ट करके हम ट्रांसमिशन के लिए मैसेज में यूज कर सकते हैं. नंबर के केस में भी अगर हम चाहे तो इसी तरह से हर एक नंबर का एक कोड बना सकते हैं, मगर इजी क्या होता है कि मैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर दूं. ठीक है. तो इस तरह से अगर हमें सिर्फ नंबर भेजना है तो आई विल प्रिफर द बाइनरी वर्जन ऑफ योर डेसिमल डिजिट. इमेज के केस में कैसे करेंगे हम. इमेज में होता क्या है कि आपके इमेज को मल्टीपल मैट्रिक्स पिक्सेल में डिवाइड किया जाता है और हर एक पिक्सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बीट या फिर जो स्टैंडर्ड है उस बेस्ड ऑन योर पिक्चर क्वालिटी, वो हर एक पिक्सेल को नंबर ऑफ बिट्स असाइन करता है. ठीक है. अब इस बीट को वो 1 बाय 1 ट्रांसमिट करते हैं और इसी तरह से आपका पूरा इमेज दूसरे एंड पे ट्रांसमिट हो जाता है. तो दिस आर द समवॉट ब्रीफ. अब इमेज की बात हमने कर दी. इमेज में भी हमने बोला कलर इमेज हो सकता है, कलरलेस इमेज हो सकता है. अगर कलर है तो आरजीबी करना है, कोई भी स्टैंडर्ड आप यूज कर सकते हो, मगर डिपेंड करता है कि सामने वाली पार्टी और जो भी ट्रांसमिशन आप जो भी स्टैंडर्ड यूज कर रहे हो वो कौन से कलर कोड या फिर मैकेनिज्म को समझता है, उसके अकॉर्डिंग आपको कन्वर्ट करके भेजना पड़ेगा. नाउ द ऑडियो पार्ट. ऑडियो इज योर कंटिन्यूअस सिग्नल. इट इज नॉट लाइक अ नंबर और टेक्स्ट और इमेज. इमेज में क्या होता है, वन शॉट, आपने जो भी भेजा डायरेक्टली पहुंच गया, मगर ऑडियो में वैसा नहीं होने वाला. यू हैव टू प्रोवाइड द कंटिन्यूअस सिग्नल. So this is somewhat different from the text and number. Video is same as audio, but here you have the picture as well. Okay? So this is the classification your message. आप मैसेज को किस किस तरह से डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो ये सारे फॉर्म में आप मैसेज को रिप्रेजेंट करवा सकते हो. नाउ द डेटा फ्लो. डेटा फ्लो कितने टाइप के होते हैं, दो डिवाइसेस है, उन दोनों के बीच में आपको कम्युनिकेशन करवाना है. तो ये दोनों अगर सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन फ्लो फॉलो कर रहे हैं, सिंप्लेक्स मतलब कि एक ही डायरेक्शन में मैसेज जाएगा, दूसरे डायरेक्शन में मैसेज जा ही नहीं सकता. इट इज कम अंडर द सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन. ऐसी लिमिटेशन पहले होती थी, केबल सिर्फ वन वे ही समझता था, मतलब कि मैं ए से बी तक ही मैसेज भेज सकती हूँ, मगर बी से वही केबल ए तक मैसेज नहीं भेज सकता. तो दैट इज द लिमिटेशन और वी कैन से द मोड ऑफ योर कम्युनिकेशन. ठीक है. तो सिंप्लेक्स इज द, अभी हम सब कुछ कम्युनिकेट फुल डुप्लेक्स में करते हैं. ये टर्मिनोलॉजी पहले बहुत ही यूज होती थी. नाउ इट इज नॉट बिन केस. हमारे केबल बहुत ही अच्छे हैं, स्पीड काफी अच्छी है और हम एक साथ ऑडियो और वीडियो दोनों, मतलब एक साथ फोन पे बात करते हैं, वैसे ही हम वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात करते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन लेते हैं, राइट. अब बात हो जाती है कि अगर सिंप्लेक्स था उस टाइम पे तो कैसे वर्क करता था. तो उस पे एक एंड को पहले से सेंडर सेट कर दिया जाता है कि एक एंड है हमेशा सेंडर रहेगा, दूसरा एंड हमेशा रिसीवर के फॉर्म में रहेगा और वो चैनल कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं हो सकती. मतलब एक कम्युनिकेशन चल रहा है उस टाइम पे आप उसी केबल का यूज दूसरे सी और डी पर्सन को कम्युनिकेट करवाने के लिए नहीं दे सकते. ओके. दिस चैनल इज नॉट बीन एबल टू शेयर अमॉन्ग डिफरेंट पार्टी. अब बात करते हैं कि ऐसा कोई एग्जाम्पल अभी मुझे मिलेगा रियल लाइफ में, तो हाँ मिल सकता है. आपके कीबोर्ड और मॉनिटर का जो केबल है वो सिंप्लेक्स फॉर्म में होता है. ये कम्युनिकेशन के लिए नहीं है. आपके जो भी सिग्नल आप दे रहे हो, कीबोर्ड को क्लिक कर रहे हो या फिर माउस को क्लिक कर रहे हो, तो आप क्या करो, एक सिग्नल सिर्फ आपके प्रोसेसर को दे रहे हो कि ये चीज मुझे एंटर करवानी है या फिर ये चीज मुझे क्लिक करनी है. तो उसमें हर बार फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है. आप ऐसा बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी तो आ रही है ना मोबाइल तक, मगर वो डेटा कम्युनिकेशन नहीं है, वो सिर्फ उसको
मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी वहां तक आ रही है। दिस इज द डिफरेंट। ओके, नाउ हाफ डुप्लेक्स मतलब क्या? हाफ डुप्लेक्स इज अ बाई डायरेक्शनल, मगर उसमें भी क्या है, वॉकी टॉकी। आप एग्जांपल ले लो वॉकी टॉकी का। जब एक डायरेक्शन में कम्युनिकेशन हो रहा है उसी टाइम पे दूसरे डायरेक्शन में कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। ओवर एंड आउट बोलते हैं फिर ही दूसरा पर्सन स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन होगा उसको हम हाफ डुप्लेक्स बोलते हैं। और पहले वैसे केबल थे कि एक ही केबल है जो वन वे भी जा रहा है, दूसरा उसी केबल का यूज करके वापस से रिसीवर से मैसेज वापस आ भी रहा है। ठीक है, इट कम अंडर द हाफ डुप्लेक्स। पहले इतने इथरनेट आते थे जो हाफ डुप्लेक्स टाइप के भी थे। अभी मार्केट में आप ढूंढोगे तो आपको हाफ डुप्लेक्स भी नहीं मिलने वाले। ऑल कम अंडर द फुल डुप्लेक्स। अब फुल डुप्लेक्स को मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इट इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि आप रिसीवर और सेंडर दोनों ही एक साथ मैसेज को ट्रांसमिट कर सकते हैं। मैं सेंडर और रिसीवर कीवर्ड यूज करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सेंडर ही सेंड करता है रिसीवर ही रिसीव करता है। दोनों पार्टी मैसेज को ले सकते हैं। जैसे कि मैं सेंडर हूँ तो मैंने कुछ मैसेज दिया, रिसीवर क्या करेगा, उस मिलने वाले मैसेज को एक्नॉलेज करेगा कि हाँ मुझे मिल चुका है मैसेज। ठीक है, तो रिसीवर से ही भी सेंडर तक कुछ मैसेज आ सकते हैं। ओके ओके, दिस इज द बेसिक डेटा फ्लो डिफरेंशिएशन। इसमें अगर आपको डाउट है तो यू कैन रीड दिस टर्मिनोलॉजी इन ब्रीफ। नाउ द नेटवर्क टर्म, नेटवर्क की जरूरत क्यों है? सबसे पहले तो नेटवर्क को हम डिफाइन करना चाहे तो हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट नोड को मैंने एक साथ मिला लिया टू मेक अ प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, अब डिवाइस बोलो उससे बेटर है आप नोड रिफर करो, क्योंकि पूरे कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के अंदर आप नोड कीवर्ड ज्यादा यूज करने वाले हो। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि आपको नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ी। वाई द नेटवर्क इज बिन देयर। नेटवर्क की जरूरत पड़ी क्योंकि हमें क्या करना था, इंडस्ट्री बढ़ रही थी, कम्युनिकेशन बढ़ रहा था, डेटा शेयरिंग बढ़ रहा था। तो उस टाइम पे हमें क्या चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए जहाँ पे हम कोलैबोरेट कर पाए। जैसे कि इंफॉर्मेशन का शेयरिंग हो गया या फिर रिसोर्सेज का शेयरिंग हो गया। इंफॉर्मेशन का शेयरिंग मतलब कि मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सारे डेटे रखते हैं हम लोग। डेटा एक ही जगह पे है, डेटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और हम लोग वहां से सिर्फ डेटा फैच करते हैं। जैसे कि हम वेबसाइट को, विकिपीडिया पेज हम कहाँ से रिफर करते हैं, उसके डेटा सर्वर से। ठीक है, तो उसी तरह के हम क्या करना चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन को, एक ही इंफॉर्मेशन को सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो वी रिक्वायर द नेटवर्क। अब मैं बोल रही थी रिसोर्सेज को शेयर करना है। रिसोर्सेज मतलब क्या, आप प्रिंटर ले लो। ठीक है, एक लैन है आपके पास, एक लैब है, उस लैब में एक प्रिंटर है, तो क्या सिर्फ एक ही पर्सन प्रिंट निकाल सकता है? नहीं, दूसरे सारे पीसी से भी आप उस लैन के कनेक्टिविटी का यूज करते हुए, उसी प्रिंटर का यूज करते हुए प्रिंट निकाल सकते हो। मतलब क्या, आपको हर एक पीसी के साथ प्रिंटर लगाने की जरूरत नहीं है, प्रिंटर एक ही है और वो चीज हर एक के साथ आप शेयर करोगे। तो आप क्या कर रहे हो, शेयरिंग ऑफ रिसोर्स। और उसका एडवांटेज क्या है, आपका कॉस्ट काफी कम हो गया। अब सोचो, आप हर एक पीसी को अलग अलग मेमोरी दोगे, हार्ड ड्राइव दोगे, तो आपको ज्यादा स्टोरेज के लिए कॉस्ट लगेगा। तो जब भी आप शेयरिंग करते हो आपके रिसोर्सेज का कॉस्टिंग काफी कम हो जाता है। दिस आर द एडवांटेज एंड दैट्स व्हाई नेटवर्क इज इम्पोर्टेंट टू हैंडल। अब मैं जब नोड की बात करती हूँ, नोड में क्या क्या आएगा, नोड में क्या क्या आ सकता है, कंप्यूटर इज अ नोड, प्रिंटर इज अ नोड, और क्या नोड कह सकते हो आप। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज नोड इन अ शॉर्ट टाइम। अब जैसे मैंने बताया कि इम्पोर्टेंट ऑफ नेटवर्क, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन के लिए, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और रिसोर्सेज के लिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब नेटवर्क की जब बात करती हूँ, इट इज नॉट लाइक कि हम सिर्फ यहाँ से वहां दूसरे सिटी तक इंफॉर्मेशन भेजते हैं, उसी को नेटवर्क बोलते हैं। नो, बड़े बड़े डेटा सेंटर में काफी रैक होते हैं, काफी सर्वर्स ब्लेड होती है, उन दोनों के साथ भी मुझे कोई चीज वर्चुअलाइज के फॉर्म में ट्रांसमिट करनी है, तो भी हम मैं क्या करती हूँ, मैं नेटवर्क को एस्टेब्लिश करते हैं, नेटवर्क को वहां पे इंस्टॉल किया जाता है, प्रॉपरली मॉनिटर किया जाता है। तो दिस थिंग ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दैट्स वाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा रिक्वायर द नेटवर्क कनेक्टिविटी। एंड द लास्ट, शेविंग द कॉस्ट। ठीक है, नेटवर्क है तो हम काफी चीजें कॉस्ट के फॉर्म में बचा सकते हैं। नाउ नोड क्लासिफिकेशन, एज आई सेड, दो टाइप के नोड आप क्लासिफाई कर सकते हो, एक होता है होस्ट और दूसरा होता है सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस। होस्ट के केस में आप किसको होस्ट बोल सकते हो, आपके लैपटॉप को बोल सकते हो, डेस्कटॉप को बोल सकते हो, मॉनिटर,
आप मॉनिटर को बोल सकते हो, मॉनिटर इज द सेम एज अ डेस्कटॉप, आप बोल सकते हो ना। सो दैट्स ऑल आर द होस्ट। होस्ट मतलब के एंड डिवाइस की तरह वर्क करेंगे आप, ठीक है। आपको फाइनल डेस्टिनेशन क्या है कि आपके मोबाइल में आपको सर्व करना है, तो आपका मोबाइल इस पूरे नेटवर्क का एंड पॉइंट हो गया। अंडरस्टूड। अब सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस मतलब क्या, आपके मोबाइल तक सिग्नल आ रहा है तो उसके उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जो भी टावर है बीच में या फिर सैटेलाइट है, ऑल आर कम अंडर द सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस। अब ये थोड़े बेसिक टर्म है, आपको अगर एक्सप्लेन करूं तो राउटर इज अ डिवाइस विच कनेक्ट डिफरेंट टू नेटवर्क। डिफरेंट नेटवर्क को मुझे कनेक्ट करना है तो मुझे राउटर चाहिए, और एक ही नेटवर्क को मुझे एक्सटेंड करना है तो उस केसेस में मुझे स्विच चाहिए। हब किसके लिए होता है, हब एक तरीके का स्विच ही है मगर ये दूसरे लेवल्स पे काम करेगा। इस सारे टर्मिनोलॉजी को इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हो, डोंट गेट कंफ्यूज। रिपीटर का काम क्या होगा, रिपीटर आपके सिग्नल को दूसरी लाइफ देगा। अगर समझो कि काफी चीजें ट्रांसमिट कर रहे हो, आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हो रही है, अब सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हो रही है मतलब कि आपके सिग्नल में जो भी पिक था उसकी वजह से 1010 था, वो आप प्लीज वो चीज आप लॉस ना करो, इसलिए आप क्या करोगे, सिग्नल को वापस से ओरिजिनल फॉर्म में लाने की कोशिश करोगे। और वो ओरिजिनल फॉर्म लाने के लिए आपको जो डिवाइस यूज करना पड़ता है, दैट डिवाइस इज नोन एज अ रिपीटर। वायरलेस राउटर, वायर्ड राउटर, वायरलेस राउटर, दिस ऑल आर द सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस। ओके, ये थोड़ा आपको नोड क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट था समझाना, बिकॉज नेटवर्क की जब बात करते हो इट इज नॉट लाइक कि हमारा मोबाइल या लैपटॉप या पीसी ही नोड है, आपके बीच के जो डिवाइसेस है वो भी आपके लिए नोड की तरह ही काम करने वाले हैं। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। नाउ सर्वर क्लाइंट रिलेशन, कैसे सर्वर क्लाइंट रिलेशनशिप होती है, सोचो एक मैंने अभी दिया आपको लैन कनेक्टिविटी, लैन मतलब के लोकल एरिया नेटवर्क। अब ये चार बंदे मिलकर एक लैन क्रिएट कर रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है फायर के थ्रू। अब एक पर्सन है जिसके पास प्रिंटर है, ठीक है, ये पर्सन है उसके पास प्रिंटर भी है। तो मैंने जैसे बताया कि ये पर्सन को अगर प्रिंट कुछ निकालना है तो वो क्या करेगा, इस लाइन का यूज करते हुए प्रिंट दे सकता है, ठीक है। तो इस केसेस में ये सारे के सारे नोड मेरे लिए क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे नोड मेरे लिए सर्विसेज जो भी लेता है। सबसे पहले सर्वर क्लाइंट का रिलेशनशिप कैसे होगा, क्लाइंट मतलब के जो सर्विसेज को यूज करता है, और सर्वर मतलब के जो सर्विस प्रोवाइड करता है। सर्वर वर्ड बनाई है सर्विस प्रोवाइडर को मर्ज करते हुए। अब मैं जब लगती हूँ सर्वर मतलब के सर्विस प्रोवाइडर, ये दोनों को मर्ज करते हैं तब जाके सर्वर बनता है। तो जो भी डिवाइस या फिर जो भी एंड यूजर किसी भी दूसरे नोड को सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उस केस में मैं उसको सर्वर बोल सकती हूँ, ठीक है। तो हमारे केस में सर्विस प्रोवाइडर कौन है, ये पर्सन है क्योंकि उसके पास प्रिंटर है और ये सबको प्रिंटिंग की सर्विस दे सकता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए हो गया सर्वर। और इस सब को कौन यूज करेगा, ये सारे यूजर क्या हो जाएगी, क्लाइंट। ये खुद भी अपनी सर्विस यूज कर सकता है तो इट इज ऑल्सो अ क्लाइंट, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए देगा तो ये प्रिंटर का वायर का यूज करते हुए यहाँ पे सर्विस पहुंच जाएगी। यस, तो ये तो एक एग्जांपल मैंने दिया प्रिंटिंग का। उसी तरह से डिफरेंट कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं, जैसे कि टेलनेट हो गया। टेलनेट इज वन टाइप ऑफ सर्विस टू कम्युनिकेट थ्रू योर लैंड नेटवर्क। ऐसे ही एक एसएसएच सर्विस है जो सिक्योर सेल बोला जाता है, और ये टेलनेट से ही इंस्पायर है। टेलनेट में जो होता है वही यहाँ पे होता है, मगर इसको थोड़ा एनक्रिप्टेड फॉर्म में रखते हैं, इसलिए इसकी सिक्योरिटी टेलनेट से ज्यादा मिलेगी आपको, ठीक है। और ईमेल मतलब क्या, ईमेल सर्विस आप सबने यूज की है। यस, तो दिस आर द सर्विस सर्वर क्लाइंट रिलेशन। कोई भी रिलेशनशिप कब बनेगा, जब कोई सर्विस होती है तो। मैं ऐसा बोलूंगी ये पर्सन और ये पर्सन दोनों सर्वर क्लाइंट रिलेशन में है, कब बोल सकती हूँ, अगर कोई भी एक पर्सन मुझे कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो। अगर कोई सर्विस ही नहीं है तो कभी भी सर्वर क्लाइंट रिलेशन नहीं बनने वाला। इज दिस फाइन। नाउ द नेट डेफिनेशन। नेट का मतलब क्या है, सबसे पहले नेट, पहले जब अर्पा नेट मतलब कि काफी जियोग्राफिकल लोकेशन को डिवाइड करते हुए एशिया, अफ्रीका, इस तरह से हमने 5 रीजन में डोमेन को डिवाइड कर दिया है। दिस ऑल आर कॉम्प्लेक्स, बट आप समझने की कोशिश करो। पहले क्या होता था, डिफरेंट सिटी और स्टेट को मुझे करना था, कनेक्ट करना था, तो मैं केबल का यूज करती थी। इट इज अ ग्राफ ऑफ अ ARPANET network in a 1980s.
1980s में इस तरह का कनेक्शन था, ठीक है। यूएस में सबसे पहले इंटरनेट का ज्यादा यूज होता था और इसी तरह से सारे के सारे कनेक्शन आप देख सकते हो। मगर अब का सिनारियो चेंज है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे इतने सारे नोड है कि आपको अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश भी करूँ तो इस तरह का डायग्राम बनेगा, ठीक है। अगर मैं अभी रिसेंट को नेटवर्क कनेक्टिविटी को अगर वायर के फॉर्म में ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो इट लुक लाइक दिस। सो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर। ये जो डिफरेंट कलर दिख रहे हैं वो क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि ये येलो वाला एक अलग नेटवर्क होगा, ग्रीन एक अलग नेटवर्क है, पर्पल एक अलग नेटवर्क होगा, ठीक है। और इन दोनों के नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, मैंने अभी क्या बताया, तो डिफरेंट नेटवर्क को कौन कनेक्ट करता है, राउटर कनेक्ट करता है, यस। तो इन दोनों के बीच में मुझे कम्युनिकेट करना है, ग्रीन और पर्पल के बीच में, तो मुझे क्या चाहिए, राउटर। इस तरह से ये पूरा कनेक्शन स्मूथली वर्क करता है। आप अपने फ्रेंड को अमेरिका है तो उनको कॉल करते हो तो ये सब कुछ स्मूथली हो जाता है। इट इज नॉट लाइक कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है तो काम भी नहीं करेगा, नो, इट ऑल वर्किंग। और उसका अगर मुझे डेफिनेशन देना है नेट का, तो मैं बोल सकती हूँ कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर करना और कंट्रोल करना, वही हमारे लिए अभी नेट है, ठीक है। पहले नेट का मतलब होता था इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन शेयर होना, ये सब। अब इसको मुझे कंट्रोल और मॉनिटर करना, वो भी एक बड़ा चैलेंज हो गया है। और उसके लिए मुझे इंटीग्रिटी और अवेबिलिटी मेंटेन करना है। मेरे पास रिसोर्सेज तो है मगर मुझे इंटीग्रिटी मैं प्रोवाइड नहीं कर पा रही हूँ। इंटीग्रिटी मतलब के जो मुझे जो एक काम हो रहा है उसी के साथ दूसरा भी वर्क हो रहा है, तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ अफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये ग्रीन वाला पर्सन अगर येलो से बात कर रहा है, उसी टाइम पे ये ब्लू वाला रेड के साथ बात कर सकता है, यस। तो ये सब चीज कब हो सकती है, अगर मैंने प्रॉपर इंटीग्रिटी चैनल डिफाइन किया है तो। अवेबिलिटी का मतलब है कि मेरे पास यहाँ पे कोई डेटा सेंटर है ग्रीन में, अब वो डेटा सेंटर को मुझे एक्सेस करना है तो मुझे 24/7 एक्सेसिबिलिटी मिलेगी या नहीं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी सर्विस इस डेटा सेंटर की कितने टाइम तक है। अगर मैं क्लेम करती हूँ कि मैं 99.9% अवेलेबल हूँ, तो वो चीज मुझे वहां पे नेटवर्क में दिखानी पड़ती है, यस। तो ये टर्मिनोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सब चीज क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इससे डायरेक्ट रिलेशन है आपकी इकोनॉमी का, पब्लिक सेफ्टी का और नेशनल सिक्योरिटी का। अगर आपके नेटवर्क को आप प्रॉपरली इंटीग्रेट और अवेलेबल फॉर्म में नहीं रखते हो तो काफी मैलिशियस पर्सन नेटवर्क में होते हैं जो नेटवर्क का मिसयूज करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसीलिए उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस करना इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नेटवर्क को कौन कौन से क्राइटेरिया पे आप जज कर सकते हो। सबसे पहला है परफॉर्मेंस। आपके नेटवर्क का परफॉर्मेंस कैसा है, वो कैसे पता चलेगा, अगर उसको प्रॉपर थ्रूपुट मिल रहा है या नहीं, अगर डिले कम हो रही है नहीं, ये सारे स्टैंडर्ड है, ओके। इसको मैं अगर स्केल में डिफाइन करना चाहूँ तो यहाँ पे प्रॉपर यूनिट होता है आपको। जैसे कि आप वाईफाई लेने, अगर आप डोंगल लेने चाहते हो, घर में वाईफाई लगाना है, तो आप क्या चेक करते हो कि अगर उसकी रिलायबिलिटी कितने स्केल पे है, परफॉर्मेंस कितना है, उसका स्पीड कितना है, बैंडविड्थ कितना है, डाउन टाइम कितना है। तो ये सब चीजें क्राइटेरिया के फॉर्म में आप नेटवर्क को चेक करते हो। सिक्योरिटी कैसे चेक करते हो कि किस तरह से वो कौन से एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड यूज करते हैं, ओके। तो ये सारे केसेस के फॉर्म में आप नेटवर्क को प्रॉपर क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है। नाउ द टाइप्स ऑफ कनेक्शन। दो टाइप के कनेक्शन होते हैं, एक तो होता है पॉइंट टू पॉइंट, ए और बी डायरेक्टली कनेक्ट है तो इट इज अ पॉइंट टू पॉइंट। और रियल लाइफ में जनरली होता है मल्टी पॉइंट। मल्टी पॉइंट मतलब कि एक ही लाइन है और उस सब पे डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। और ये चीज अगर मैं बोलना चाहूँ तो उसको मल्टी ड्रॉप भी बोल सकते हो, ओके। और मल्टी ड्रॉप क्यों करते हैं, क्योंकि मुझे स्पार्टियल, अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है कि स्पेशल शेयरिंग और टेम्पोरल शेयरिंग में क्या डिफरेंस है, तो यू कैन पोस्ट दिस वीडियो एंड रीड दिस आर्टिकल, ठीक है। और पॉइंट टू पॉइंट दो टाइप के हो गए, वायर्ड और वायरलेस। तो दिस आर द बेसिक कनेक्शन डिफरेंस। मैं काफी ब्रीफ में अभी एक्सप्लेन करी हूँ, डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, बिकॉज यू शुड एक्सपेक्ट ऑल दिस थिंग टू बी डिस्कस इन योर लेक्चर। नाउ तो फिजिकल टोपोलॉजी अगर मैं बोलूँ तो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था कि ये जो है वो आप बस टोपोलॉजी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन है और उसमें मल्टीपल नोड कनेक्ट है। तो उसी तरह से डिफरेंट ये सारे टोपोलॉजी को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जाएगा कि फिजिकल टोपोलॉजी किस तरह से ड्रॉ की जाती है, आपके केबल्स किस तरह से कनेक्ट है, उस पर डिपेंड करता है कि आपके लैन
आपने कैसे बनाई। मुझे स्टार लैन चाहिए तो मैं स्टार लैन बना सकती हूँ, रिंग लैन चाहिए तो मैं रिंग लैन बना सकती हूँ। अगर मुझे अपनी लैन कनेक्टिविटी मैश के फॉर्म में चाहिए तो मैं मैश फॉर्म में भी बना सकती हूँ। सो दिस आर द डिफरेंट बेसिक टोपोलॉजी टाइप्स। स्टैंडर्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों पड़ी? यस, स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ती है क्योंकि हमें क्या चाहिए, इंटर कम्युनिकेशन। हमने इतना सारा क्यों पढ़ा? क्योंकि हमें डेटा कम्युनिकेट करना है। अब दूसरे स्टेट में या फिर दूसरी जगह पे दूसरी लैंग्वेज बोली जाती है, हम कुछ अलग बोल रहे हैं, तो हम प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर सकते। यस, तो मुझे कोई चाहिए स्टैंडर्ड। मैंने अभी बताया प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटोकॉल इज अ वेरी लो लेवल, आप बोल सकते हो कि वो काफी डिटेल में जब पढ़ोगे तब प्रोटोकॉल का आइडिया आएगा, मगर स्टैंडर्ड इज अ डिफरेंट थिंग। स्टैंडर्ड होता है कि गवर्नमेंट बॉडी है, डिफरेंट कंट्री है, उन दोनों के बीच में मुझे कोई भी कम्युनिकेशन चैनल डिफाइन करना है तो मुझे कुछ स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा। तभी जाके मैं प्रॉपर इंटरऑपरेबिलिटी क्रिएट कर सकती हूँ। ये थोड़े बेसिक मैंने स्टैंडर्ड लिखे हैं 802.11। इट इज द IEEE स्टैंडर्ड। IEEE का 802.11a इज फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। अब IEEE का फुल फॉर्म क्या है, कोई पूछेगा तो आप बोल सकते हो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। और इसको 802 ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्टैंडर्ड जब डिफाइन किया गया था उस टाइम पे 1980s का फेब मंथ था, तो उसके बेसिस पर उन्होंने इस तरह का स्टैंडर्ड का नंबर दे दिया है। काफी सारे स्टैंडर्ड्स हैं और हर एक का अलग अलग नंबर है, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए ये दोनों यहाँ पे रखे थे। इंटरनेट इज ऑल्सो वन स्टैंडर्ड। अब जब वायर कम्युनिकेशन की बात करते हो, लैन कनेक्टिविटी की बात करते हो, आपको क्या चाहिए? इथरनेट चाहिए, ठीक है। तो दिस आर द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड होते हैं तो आप प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकते हो। अब दो टाइप के मैं अगर स्टैंडर्ड को डिवाइड करना चाहूँ तो एक तो होता है डी फैक्टो और डी जोर। डी जोर मतलब कि बाय लॉ। अब मैंने कुछ ऐसा डिफाइन कर दिया कि ये ऐसा ही करना है तो इट बिकम माय डी जोर लॉ। और डी फैक्टो मतलब कि कोई पर्सन यूज कर रहा था, पूरी कंपनी यूज कर रही थी, उसके पार्टनर भी वो यूज कर रहे थे, वो एक जनरलाइज टर्म बन जाता है। जैसे कि आप व्हाट्सएप यूज करते हो, आपके फ्रेंड कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, तो मेजोरिटी जो हो जाएगी वो हमारे लिए स्टैंडर्ड बन जाएगा कि मुझे कुछ भेजना है तो मैं ईमेल ही करूंगी, तो इट बिकम माय स्टैंडर्ड। हाँ, जैसे पब्लिक में जो चीज ज्यादा एक्सेप्ट हो जाती है वो बन जाता है डी फैक्टो, ठीक है। यहाँ पे थोड़े लिस्ट आउट मैंने किए हैं, इनको मैं डिटेल में लेक्चर में पढ़ाऊंगी। दिस ऑल आर द स्टैंडर्ड, ठीक है। और इन स्टैंडर्ड के कब हुआ, इसकी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे बनता है, इसके अंडर में कौन सी चीजें हैंडल होती है, कौन सी कमिटी का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑल थिंग आर देयर। नाउ कम टू द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट। अब मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था, अगर आप इस प्रोफाइल में फिट होते हो, आपका एक्सपीरियंस इतना है, आपके टेक्निकलिटी में आप फिट होते हो, तो आपको नेटवर्क एडमिन की पोस्ट दी जा सकती है। नेटवर्क एडमिन के पास टेक्निकलिटी तो होने ही चाहिए और साथ में होते हैं कुछ सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट सॉफ्ट स्किल में क्या आ जाएगा कि नेटवर्क में कई बार ट्रबल शूट करने के टाइम पे जरूरी नहीं है कि आपको इतना नॉलेज है तो आपको हर बार आपकी प्रॉब्लम मिल ही जाएगी। हर बार नई चीज नई सिनारियो के साथ आ जाती है, नए एक्सपर्ट होते हैं, नए इंट्रूडर होते हैं। इंट्रूडर मतलब कि जिसको हमें अपने नेटवर्क में वेलकम नहीं करना है तो भी वो आ जाता है। आप उसको अटैकर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजों को मुझे प्रॉपरली एनालाइज करने के लिए सबसे पहले अच्छा पेशेंस चाहिए। कई बार चीजें हमारी सामने होती है हमें दिखता नहीं है बिकॉज वी आर नॉट एट मच पेशेंस। तो ये चीज भी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। फिर आईटी टेक्निकल स्किल, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको आईटी का भी नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल स्किल्स की आपकी सॉल्व होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। इंटरपर्सनल स्किल, इंटरपर्सनल मतलब क्या, आपके साथ एक पूरी टीम होगी, कभी भी कोई एक पर्सन पे पूरा ऑर्गेनाइजेशन रिलाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको टीम के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कई बार आपको इनिशिएटिव लेने पड़ते हैं, कई बार रिस्क टेकिंग एटीट्यूड भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा। आपके जो डिवाइसेस होते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस दैट आर वेरी कॉस्टली, ओके, तो वो इनिशिएटिव लेकर आपको बोलना पड़ेगा कि दिस डिवाइस इज रिक्वायर्ड इन अवर नेटवर्क एंड you have to provide the tender and you should have the proper explanation why you require this thing in your network। तो ये सब इनिशिएटिव लेने के लिए भी आपको काफी नॉलेज और
प्रॉपर गाइडेंस, ये सब चीज आपको मिलेगी तभी आप कर सकते हो, ठीक है। और अटेंशन टू द डिटेल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नेटवर्क एडमिन में होनी चाहिए कि काफी चीज जैसे कि एक वायर है या फिर कनेक्टर है, आपको लगता है कि ये ठीक है चलेगा उसके बिना, नहीं। स्मॉल टू स्मॉल कनेक्शन शुड बी मॉनिटर पीरियोडिक, उसको बोलते हैं ऑडिट करना। तो नेटवर्क में कई बार हम फेक ऑडिट करते हैं कि चलो हम चेक करते हैं कि नेटवर्क में अगर कोई चीज होती भी है तो किस तरह से नेटवर्क अपने आप को वापस से ओरिजिनल शेप एंड साइज में ले आता है। हम्म, तो ये सब डिफेंसिव मेजर्स होते हैं, वो सब भी आपके नेटवर्क में होने चाहिए। हाँ, डिपेंड करता है ये सब चीज आप किस लेवल पे ले जा सकते हो, ठीक है। तो दिस आर द स्किल विच आर नीडेड टू बी अ गुड network admin. And with this good note, I will end this video lecture. I hope this video lecture will help you and provide you the proper glance through this subject of data communication. And this is very interesting subject. I will welcome all you.